Hey everyone, this video is about the powers of the US President. We have started a series of the Constitution of USA. So this is the fourth lecture of this series. Let's begin with the lecture. The powers of the President can be broadly classified into 4 points. The first is legislative power, executive power, financial and judicial powers. We will study each power in detail. The legislative functions of the President. The first comes the veto power. Pocket veto power is something which we all are aware of. कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर रहता है कि अगर उसे कोई बिल पास नहीं करना या रिजेक्ट नहीं करना तो वो उसको अपने पॉकेट में डाल के छोड़ देता है और फिर वो बिल कभी पास ही नहीं हो पाता. देखो क्या है that it is necessary that every bill must pass to the president for his final approval. And the president has 3 options. Either he can give his assent to the bill, or he may reject the bill and send it back to the house or to the parliament for corrections. And the third option is he can reserve the bill, he can put it in his pocket, which is known as pocket veto power. And in case of USA, अगर बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचने के 10 दिन तक कांग्रेस सेशन में रहती है तो वो बिल 10 दिन के बाद अपने आप लॉ बन जाएगा. अगर कांग्रेस does not remain in session for the next 10 days, then that bill can never become a law again. फिर वो बिल बस वहीं अटक जाएगा, उसके बाद में उस बिल का कुछ नहीं हो पाएगा. एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये वीटो पावर बहुत बार यूज किया है. अब तक around 700 times ये पावर यूज हो चुकी है. This is because the president is not accountable to the Congress. उसे जवाब तो देना नहीं होगा that what has he done with the bill, why isn't he replying, why isn't he giving his assent or is rejecting the bill. So that is why the president very conveniently uses the power of pocket veto. ये president का legislative power रहता है. Next is he may send messages to the Congress either orally or as a document. If he wants the Congress to pass a particular bill or to make some law on a particular topic, he can send messages to the Congress. चाहे तो वो directly खुद जाकर बोल सकता है या as a document भी बनाकर Congress को दे सकता है. Then comes the special sessions. President is given power and has the authority to convene special sessions of the Congress. Congress अगर उसे लग रहा है that there is a need कि Congress का एक session हो तो President Congress का special session बुला सकता है. After the 20th amendment, this power is rarely used because इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ये power बहुत rarely use की जाती है. Next is patronage. President के पास में he has extensive patronage because he makes a lot of appointments. बहुत सारे appointments in especially high offices के सब president करता है. High offices के appointments करने के लिए he needs the approval of Senate, but for the appointments to the lower offices he alone can make the appointments. उसे यहाँ पे Senate के approval का जरूरत नहीं है. सेनेटर्स जो हैं वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सेनेटर्स अपना अप्रूवल ना दें. तो जो प्रेसिडेंट ने एक बार बोल दिया कि ये पर्सन इस जगह पे अपॉइंट होगा तो दैट इज ऑलमोस्ट फाइनल. सेनेटर्स बहुत रेयरली उस चीज को अपोज करते हैं एंड दे डू दिस टू गेट द फेवर ऑफ प्रेसिडेंट. देन इज ही मेक अपील्स टू पब्लिक ओपिनियन. देखो प्रेसिडेंट इज द लीडर ऑफ द नेशन, वो पूरे कंट्री का हेड है और ये जो पोस्ट है बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट है ये प्रेसिडेंट का. तो जो नेशन है, नेशन के सब लोग प्रेसिडेंट की बात को सुनते हैं तो वो डायरेक्टली लोगों से अपील कर सकता है. अगर उसे कोई चीज वो चाहता है कि कंट्री के अंदर ये चीज हो तो वो डायरेक्टली लोगों से अपील कर सकता है. अगर हम इसे इंडिया से रिलेट करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे टास्क दिए थे और लोगों ने किए भी थे. तो ये क्या चीज है? दिस इज बिकॉज वी रिस्पेक्ट हिम.
हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो वो कहते हैं हम वो बात मानते हैं। यही चीज यूएसए में भी है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो लोगों से किसी भी चीज के लिए अपील कर सकता है। देन कम्स इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि प्रेसिडेंट इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस ले सकता है, किसी भी टॉपिक को उसे डिस्कस करना है तो वो डिनर टेबल पे या टी टेबल पे उस टॉपिक को डिस्कस कर सकता है। देन कम्स द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस खुद से बना सकता है, ठीक है, और उन रूल्स और रेगुलेशंस का फोर्स बिल्कुल एक लॉ की तरह ही होगा। जैसा एक कांग्रेस के दोनों हाउसेस ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट का साइन हो गया, फिर जो लॉ का पावर होता है वही सेम पावर इन रूल्स और रेगुलेशंस का होगा जो प्रेसिडेंट बनाएगा। देन कम्स हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स। ही इज द एक्सपोनेंट ऑफ फॉरेन रिलेशंस। जितने भी फॉरेन कंट्रीज के साथ में कोई ट्रीटी होगी या किसी कोई आया है फॉरेन कंट्री से, उसे रिसीव करना है, उससे मिलना है, तो ये सब काम जो है प्रेसिडेंट करेगा, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स यूएस इन फॉरेन कंट्रीज। वो फॉरेन पॉलिसीज भी फॉर्म करता है, डिप्लोमेट्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और जितनी भी ट्रीटीज करनी है फॉरेन ट्रीटीज वो भी प्रेसिडेंट ही साइन करता है, ऑफ कोर्स विद द consent of Senate. एग्जीक्यूटिव अग्रीमेंट्स। अगर कोई एग्जीक्यूटिव अग्रीमेंट करना है, इसे सीक्रेट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, तो ये चीज भी प्रेसिडेंट कर सकता है। सीक्रेट डिप्लोमेसी क्या होता है कि दो कंट्रीज के एग्जीक्यूटिव्स के बीच में कोई भी अग्रीमेंट अगर साइन हो रहा है तो ठीक है, जैसे हमारे यहाँ से पीएम मोदी जाए और वहां से डोनाल्ड ट्रंप, तो वो दोनों आपस में एक सॉरी यहाँ से प्रेसिडेंट जाए और वहां से प्रेसिडेंट, तो ये दोनों एग्जीक्यूटिव्स आपस में कोई भी अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, एंड दे नीड नॉट टू मेंशन इट। लोगों को नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव दिस पावर। ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। पूरे नेशन की एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है ये। जितने एक्शंस होंगे, जितने लॉज बनेंगे, जो कुछ होगा कंट्री में, सब कुछ इसके नाम के अंदर होगा। करेगा कोई, लेकिन इवेंचुअली नाम आएगा दैट दिस इज ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। He protects the constitution, laws and the properties. आर्म्ड फोर्सेस हमने देखा था कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है, तो इसको भी प्रेसिडेंट ही अंडरटेक करता है। हमने कुछ गारंटीज के बारे में पढ़ा था जो फेडरल गवर्नमेंट अपने फेडरल यूनिट्स को देती है, तो वो गारंटीज प्रेसिडेंट इंश्योर करता है कि सभी स्टेट्स को रिपब्लिक रहने की गारंटी मिलेगी, और उन सभी स्टेट्स को वो इन्वेजन और डोमेस्टिक वायलेंस से भी प्रोटेक्ट करता है। कमांडर इन चीफ, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उन सबका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट रहता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड द प्रोटेक्शन। ही आल्सो अपॉइंट्स द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड एंड ही कैन आल्सो रिमूव देम। देखो, इफ यू हैव नोटिस्ड इट, जो पावर्स है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की, दे आर वेरी सिमिलर विद द पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट भी ही इज द कमांडर इन चीफ। सभी तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का सुप्रीम हेड प्रेसिडेंट ही रहता है। वैसे यूएसए के अंदर भी the US president is the supreme commander of the armed forces. सीक्रेट डिप्लोमेसी मैंने आपको भी बताया था कि सीक्रेटली कोई भी अगर अग्रीमेंट साइन करना है किसी फॉरेन कंट्री के साथ में, so the president is authorized to do so. ये अग्रीमेंट दो कंट्रीज के एग्जीक्यूटिव्स के बीच में साइन होता है। Then comes appointments. He has extensive patronage. बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करता है प्रेसिडेंट सुपीरियर सर्विसेज के with the consent of Senate, or inferior services के president alone can make the appointments, and he can also remove the ones appointed by him. सेनेटोरियल कर्टेसी एक ऐसी चीज है इसका जिसका मतलब है कि सेनेट जो है वो बहुत रेयरली ही अपोज करेगा। सेनेट मोस्टली अपना कंसेंट दे देता है कि ठीक है, आपने ये लोग बोले हैं अपॉइंट करने के लिए, तो इट इज फाइन विद अस। इसे बोलते हैं हम सेनेटोरियल कर्टेसी कि सेनेटर्स प्रेसिडेंट को अपोज नहीं करते।
power of removal. Apart from impeachment, बाकी जितने भी ऑफिसर्स को रिमूव करना है वो सारा काम प्रेसिडेंट का ही है. जो लोग इम्पीच होंगे जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन्हें छोड़कर बाकी जितने ऑफिसर्स के लोगों को जिसने प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है उन सबको वो उनके पोस्ट से रिमूव भी कर सकता है. जुडिशियल पावर्स जैसे हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के पास में है, पार्डन करने की, रिप्राइव करने की, एमनेस्टी, ये सारे पावर्स अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास में भी है. And he also appoints the judges of Supreme Court. One thing which is very important here is that the president does not have the power to pardon the ones जो impeachment के केस में है. अगर किसी को impeach कर रहे हैं तो उस केस के अंदर president cannot do anything. ये सेनेट के हाथ में ही रहता है. Then comes the financial powers. President पूरी तरीके से कंट्री का फाइनेंस कंट्रोल करता है. जो भी बजट बनता है वो सब प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के अंदर बनता है. And he is also known as the general manager of financial affairs. Position of American president, इसका position बहुत ही important है. इसके real और effective powers है. He is the real executive of the country after all. जितने भी ब्रिटिश किंग के पावर्स थे ना, वो सारे पावर्स हमने प्रेसिडेंट को दे दिए. ऑल्दो यहाँ पे इसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं ताकि पावर्स इसके एक्सेसिव ना हो जाए और ये उनका गलत यूज ना कर पाए. जैसे हमने देखा था कि इम्पीचमेंट के केस के अंदर प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, वो सेनेट के हाथ में रहता है. तो इस तरह से कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट के पावर में चेक्स भी बनाए हुए हैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द वॉइस ऑफ द नेशन. इस पूरा नेशन इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको इलेक्ट करता है, तो ये पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. And he is the ceremonial head of the republic because he is elected by the people. Then comes American cabinet. There were separate government departments. ठीक है, there were a total of 12 government departments. तो इन सभी के जो heads हैं, these are collectively known as cabinet. ये सब these are like the family of the president and are his advisors, very loyal to the president. The members of the cabinet are not the members of the Congress and are not responsible to the Congress. The way the president is not accountable to the Congress, his cabinet is also not accountable. The cabinet is elected by the president. He has the power to choose his advisors, of course, but he needs the approval of Senate. And the members of the cabinet can be removed by the president. They are elected for the term जब तक प्रेसिडेंट रहेगा, and they hold office till the term of the president. That means जब तक प्रेसिडेंट चाहे, till the will of the president you can say, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये लोग अपना पोजीशन होल्ड करके रखते हैं. The position of the cabinet. Cabinet is not responsible for executive actions. इंडिया में कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल. कैबिनेट के मिनिस्टर से आप पूछ सकते हो कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, लेकिन अमेरिका के अंदर दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग. They just gives advice to the president and that's it. They meets once a week और इनका जो proceeding है वो बहुत informal होता है. No strict procedure is there. And they do not sit in the Congress. They are not a policy making body. They are just council of advisors for the president. इनके कोई independent powers भी नहीं रहते. तो कैबिनेट का मेन वर्क क्या है कि they are just advisors to the president. Then comes the vice president of the country. वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल सेम है. जैसे लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो लोग एक वोट वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी डालते हैं. और अगर यहाँ पे कोई क्लियर मेजॉरिटी ना मिल सके तो सेनेट विल डिसाइड कि कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा. वन थिंग विच पीपल नीड टू हैव इन देयर माइंड कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों सेम स्टेट से बिलोंग नहीं कर सकते. दोनों डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करेंगे and also to the different wings of the party. These were the powers of the American president and the vice president also.
I hope this is clear to you. If you like this lecture, please press the like button. Also subscribe my channel for the entire series of Constitution of USA. Thank you.